Hello students, today we are going to discuss one more practical question from voyage account. Clear? Let's see the question first. MV Indian Express ship commenced voyage on 1st October 2015 from Mumbai. What is the commencement date of voyage? 1st October. And what is the destination from the voyage start? Mumbai to London, and destination is London and back. It's a complete voyage क्योंकि ship is going from Mumbai to London and then coming back from London to Mumbai. On 30th November 2015 the return voyage was completed. 1st अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था voyage आपका और 30th नवंबर को complete हो रहा है. That means it takes 2 months for completion of this voyage. So some expenses which are given in the question as an annual charges should be transferred for 2 months only. द रिटर्न वर्क ठीक है. इट कैरीड अ कंसाइनमेंट ऑफ टी ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी, यानी जब शिप मुंबई से लंदन जा रहा था तब वो टी कंसाइन कर रहा था, टी लोड किया गया था उसमें शिप में. एंड ऑफ मशीनरी ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, और व्हेन शिप इज़ कमिंग बैक फ्रॉम लंदन टू मुंबई इट हैज़ लोडेड मशीनरी. द शिप वॉज इंश्योर्ड एट एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹12,000 per annum. दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट. एनुअल प्रीमियम इज़ गिवन 12,000 per annum. दैट मीन्स ये 12 महीने का खर्चा दे रखा है. And here we have to charge only 2 month expenses. Then how we will calculate it? 12,000 upon 12, this will give you 1 month expenditure, and then you will multiply this figure with 2. So this will give you 2 month insurance premium. So 12,000 upon 12 will come 1,000 into 2. So final figure will come 2,000. Means you have to put insurance premium towards debit side, ₹2,000 in voyage account. Wages 12,000, port charges 1,400, diesel 7,500, freight earned outward. आउटवर्ड मीन्स जाते वक्त फ्रेट की अर्निंग कितनी हो रही है? 25,000. स्टोर्स परचेज 4,200. डेप्रिसिएशन एनुअल 24,000. वंस अगेन वी विल डू द ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन जस्ट लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम. डेप्रिसिएशन इज गिवन फॉर 12 month. तो वंस अगेन वी विल डिवाइड 24,000 by 12. इट विल गिव यू 1 month expenditure 2,000. And again we have to charge depreciation for 2 months because voyage period is 2 months. Because voyage start from 1st October and ends as on 30th November. October and November only for 2 months. So it will come 4,000. Freight earned inward when it is coming back to freight income was 17,500. Address commission 5% on outward and 4% on return freight. ये जो आपको एड्रेस कमीशन देना है 5% तो आउटवर्ड जर्नी पे देना है और 4% रिटर्न जर्नी पे देना है. पैसेज मनी रिसीव्ड आउटवर्ड जर्नी ₹2500. Primage is 5% on freight. Always remember, primage will increase your income. So when you will calculate address commission, so you will not calculate address commission only on freight. You have to calculate address commission on freight plus primage. तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसके ऊपर आपको फ्रेट एड्रेस कमीशन पे करना होगा. स्टोर्स एंड कोल ऑन हैंड वर वैल्यूड एट ₹750 ऑन नवंबर 30, 2015. ये स्टोर्स और कोल में इतने का आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया है तो ये हमें क्रेडिट साइड पे डालना पड़ेगा क्योंकि ये इतने से हमारे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए. प्रिपेयर वॉयज अकाउंट. दिस इज़ द क्वेश्चन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी हाउ वी विल सॉल्व इट. एट द टॉप यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी एंड नेम ऑफ द कंपनी इज MV Indian Express ship. Here you have to write what you are going to prepare voyage account. What is the date from October 1, 2015 to November 30, 2015. Here you can mention journey. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई है? मुंबई से. हेयर जर्नी कहाँ पे एंड हो रही है आपकी? लंदन. तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो. डेट ऑफ कमेंसमेंट एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल, दोनों डेट जो चीज़ यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट ऑल द एक्सपेंसेस टुवर्ड डेबिट साइड, मीन्स दिस साइड. क्लियर? वेरी फर्स्ट वी आर पुटिंग हियर डीजल 7,500 given in the question. Then stores purchase 4,200 given in the question. Clear? Then depreciation. I just told you how we will calculate depreciation. 24,000 divided by 12 into 2. So it will come 4,000. These three figures are clear to all of you. Now we will discuss more figures. See, port charges. Port charges are 1,400 given in the question. Wages 12,000 given in the question. Insurance की कैलकुलेशन भी वैसे ही करेंगे. 12,000 था टोटल इंश्योरेंस फॉर 12 month. 12,000 upon 12 into 1, तो इंश्योरेंस फिगर विल कम 2,000. क्लियर? एड्रेस कमीशन. एड्रेस कमीशन के लिए बी अलर्ट.
first of all calculate your total income, only then you can calculate address commission. Clear? To leave the address commission right now, very first we are going to calculate incomes towards credit side. See how ये क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रेट आउटवर्ड, जब आप मुंबई से लंदन जा रहे थे तो आपका फ्रेट कितना मिल रहा था 25,000, और इस फ्रेट पर आप प्राइमेज कितना चार्ज कर रहे थे 5%. व्हाट इज़ अ प्राइमेज? इफ़ यू इंश्योर द कस्टमर की दैट यू विल डिलीवर द गुड्स इन अ सेम कंडीशन विथ सिक्योरिटी एंड विदाउट एनी लॉस, इन दैट केस यू चार्ज प्राइमेज एक्स्ट्रा. ठीक है, फ्रेट तो मिलना ही मिलना है, लेकिन हम प्राइमेज एज अ सिक्योरिटी चार्जेस आपसे चार्ज करते हैं कस्टमर से. तो 5% 25,000 का इट विल कम 1250. तो हेयर यू हैव टू कैलकुलेट एड्रेस कमीशन ऑन 26,250, नॉट ओनली ऑन 25,000. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? कि आफ्टर एडिंग प्राइमेज इन फ्रेट वॉट एवर यू विल गेट, यू हैव टू पे कमीशन टू द ब्रोकर ऑन दिस अमाउंट. सिमिलरली प्राइमेज फ्रेट इनवर्ट, जब आप वापस आ रहे हो तो 17,500 का फ्रेट है, क्वेश्चन में मेंशन है. एंड व्हाट इज़ योर प्राइमेज? प्राइमेज इज़ अगेन 5%, 875. तो टोटल फिगर इज़ कमिंग हेयर 18,375. क्लियर? तो अब जो आप उस पर कमीशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वो दोनों फिगर पे कैलकुलेट करोगे. यू कैन सी द वर्किंग हेयर. ठीक है, इसमें देखिए आपके पास जो प्राइमेज आ रही है टोटल कितनी आ रही है 2047.50. कैसे? कि पहले आपने इस पर 5% कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 1312. फिर आपने 18,375 पे 4% कैलकुलेट किया, इट इज़ कमिंग 735. तो दोनों कमीशन को आपने जब ऐड करा तो दिस इज़ योर फाइनल कमीशन विच यू हैव टू पे टू द ब्रोकर. दैट मीन्स दिस इज़ योर टोटल एड्रेस कमीशन. तो एड्रेस कमीशन वी आर पुटिंग हेयर 2047.50. क्लियर? हमने क्या किया, फ्रेट इन आपका जो था मुंबई टू लंदन, उस पर फ्रेट प्लस प्राइमेज की फिगर जो है उस पर 5% से चार्ज किया, क्वेश्चन में मेंशन था. और जब लौट रहा था शिप हमारा लंदन टू मुंबई तो उस पर 4% एड्रेस कमीशन ड्यू था. तो एक पे 5%, एक पे 4%, और दोनों को ऐड करके टोटल एड्रेस कमीशन आ गया 2047.50. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ पैसेज मनी, पैसेंजर से आप कितना चार्ज कर रहे हो 2500. एंड स्टोर्स एंड कोल्स ऑन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक इज 750. क्लियर? अब आपने सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम रिकॉर्ड कर लिए हैं. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द लेजर बैलेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. दिस टोटल इज कमिंग 47,875. पुट दिस टोटल हेयर and then deduct all the expenses. So you will get here balancing figure. This is 14,727.50. Balancing figure is coming towards debit side. That means it's a profit. Clear? Because your income is more than your expenses. That's all students. I hope कि आपको clear हो गया होगा. Thank you students.